जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, डॉक्टर एम रघुवैया जो जेसीएम स्टाफ साइड के सदस्य हैं, क्या कहा उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लेकर, किस प्रकार है तैयारी और कब होगी मीटिंग। और दूसरी बात, कर्नल रोहित चौधरी, हाँ जी दोस्तों, ईसीएचएस का ढांचा बैठ गया है, नहीं मिलेगा पूर्व सैनिकों को इलाज क्योंकि सरकार नहीं दे रही है पैसा। और दोस्तों, आर्मी कैंप में लगी आग, अफरा तफरी। और देखिए हमारे देश के असली हीरो और धुरंधर कौन है, ये आपको देखना होगा। और उसके साथ कर्तव्य पथ यानी रिपब्लिक डे पर क्या है तैयारी। तो खबर करते विस्तार से। सबसे पहले मैं आपके सामने नई साल का नया वीडियो, जो कि 8वां वेतन आयोग, महत्वपूर्ण मुद्दा है। और ये कह रहे हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के महासचिव डॉक्टर एम रघुवैया, जो कि जेसीएम स्टाफ साइड के वरिष्ठ सदस्य हैं। और उन्होंने पूरा निगोशिएशंस और अपना ड्राफ्ट 8वें वेतन आयोग को लेकर तैयार कर लिया। आगे के लिए वो क्या कह रहे हैं, जरा उनका वीडियो देखिए। Of Indian Railways and wish them happy, prosperous, healthy New Year 2026. In the year 2026, railway employees in general, retired employees also will be facing many challenges. 8th Central Pay Commission has been constituted. Now it is our collective duty as NFIR and its affiliated unions of India, all Indian Railways, to work together for the purpose of placing cogently the problems, issues, anomalies, deficiencies, etc. of each category of railway employees and also issues concerning the railway pensioners before the 8th Central Pay Commission. NFIR has already prepared a draft material that is yet to be finalized. After consultation with the stakeholders, we will be finalizing our presentation in the form of memorandum to be submitted to the 8th Central Pay Commission. I would appeal to all employees of all categories, equally retired employees and pensioners, to kindly assist the NFIR and its affiliated unions in highlighting the problems and also the anomalies and how the pay structure is required to be changed. I am sure that your cooperation shall be there for the organization to serve you with a dedication and devotion. Now cadre restructuring committee exercise is going on. Now how best we can improve the upgradation to the various categories without tampering with the surrender of posts. Now, in the name of matching money value, the Railway Board is proposing to surrender 58,600 posts for implementing the cadre restructuring in order to make this exercise financial neutral. We have opposed it. We explained to the Railway Board in writing. Their copy may be available with affiliated unions and also the employees. We explained how the posts have been surrendered annually by the Railway Board, and those posts are required to be taken into account for the purpose of money value for meeting the so-called expenditure neutral concept. Now it is under consideration. There is hope of merger of technician grade 2 with a grade 1. There is also hope of track maintainer 2400 getting merged with a grade 1 2800. There is also hope of senior ALP 1900 getting merged with junior ALP 1900 getting merged with 2400 grade pay senior ALP. There is also hope of unifying the cadre of loco running staff instead of continuing this present confused concept of passenger pilot, senior passenger pilot, male pilot. Why not it should be from LP goods to mail or express pilot. That express or mail pilot can also operate passenger trains, coaching services, equally mail and express services according to their seniority status. That is how some radical change
we intend to bring all these issues are under consideration. Today is the New Year Day. We are celebrating. I felt I should briefly place before you for your appreciation. Thank you. जैसा कि उन्होंने कहा है कि सरकार ने अपनी घोषणा कर दी है, आयोग का गठन हो गया है, लेकिन जो गजट नोटिफिकेशन है उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं, डिस्क्रिमिनेशंस हैं। इसको लेकर के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर के हमने अपनी इंटरनल मीटिंग कर ली है और जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे बातचीत हो गई है, ड्राफ्ट तैयार हो गया। यानी इन्होंने ये नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के कार्यक्रम में उनको नए साल की शुभकामनाएं दी और आगे केंद्रीय कर्मचारियों के रेलवे के जितने मुद्दे हैं उनके ऊपर उन्होंने खुलकर बात की और सबसे बड़ा मुद्दा 8वें वेतन आयोग का रखा और पुरानी पेंशन स्कीम का रखा और तमाम उनकी जो समस्या हैं और उसके साथ उन्होंने पेंशनर्स को भी शामिल किया। उन्होंने दो बातें कही कि मैं इसका बड़ा लीडर हूं, लेकिन जेसीएम स्टाफ साइड जो कि सरकार के साथ अधिकृत है, बातचीत करने के लिए मैंने अपना पूरा मेमोरेंडम ज्ञापन तैयार कर लिया है और आगे हम सरकार के सामने जिस तरीके से हमारी बातचीत होगी हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मुद्दा उठाएंगे। पुराने मुद्दे भी बहुत पेंडिंग हैं और चाहे 18 महीने का एरियर की बात की हो, चाहे उन्होंने एडिशनल पेंशन की बात हो, सीजीएस इश्यू को लेकर के बात की हो और नए पैटर्न यानी उन्होंने नया बदलाव की बात की है जो कि डॉक्टर अकॉर्ड फॉर्मूला में बदलाव हमेशा जिस तरीके से शिव गोपाल मिश्रा साहब ने भी किया था, ये उन्हीं के सहयोगी भी हैं दोस्तों, जैसे जेसीएम स्टाफ साइड के बड़े सदस्य हैं और उन्होंने कहा है कि हमारी सारी चीज तैयारी है और जैसे ही आगे मीटिंग का बुलावा आएगा हमने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। हम ज्यादा से ज्यादा चाहेंगे कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा हो, तो देख सकते हैं आप इनका वीडियो। अब मैं बात करूंगा ईसीएचएस को। ईसीएचएस हाँ जैसे दोस्तों हम सभी समझते हैं भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना है और इसको लेकर बड़ा तीखा प्रहार किया है कि भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना का ढांचा पूरी तरह से बैठ जाएगा। इनपैनल्ड अब पूर्व सैनिकों का इलाज नहीं करेंगे क्योंकि उनके बिल पेंडिंग हैं। उनके बिल इसलिए पेंडिंग है कि सरकार पैसा नहीं दे रही है और पिछला जो हवाला दिया कि 13,500 करोड़ रुपए चाहिए थे लेकिन सरकार ने 9,831 करोड़ रुपए ही दिए। और यह कर्नल रोहित चौधरी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने सीएजी रिपोर्ट के हवाले से बताया कि सेना में जवानों की कमी है, वहां भी जवान संघर्ष कर रहे हैं और रिटायरमेंट आने के बाद अपने इलाज के लिए जूझ रहे हैं। यह बहुत बड़ी विडंबना है। सरकार पर तीखा हमला किया कि उन्होंने कहा लगभग ये पैसा 6,000 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। सरकार ईसीएचएस में पैसा नहीं देगी, दवाइयों की किल्लत आएगी, इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल रेफरल स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल हैं उनके बिल करोड़ों रुपए पेंडिंग हैं। और बिल्कुल दोस्तों बात सही है, कांग्रेस पार्टी के सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी जी ने सीएजी रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा है कि भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना साल 2023-24 में इस योजना के लिए 13,500 करोड़ रुपए की जरूरत थी। सरकार ने 9,831 जारी किए। विभिन्न इंपैनल्ड हॉस्पिटल के 1 वर्ष से ज़्यादा उनके बिल पेंडिंग है। इंपैनल्ड अस्पताल इलाज ना नुकुर कर रहे हैं। रोहित चौधरी साहब ने बताया कि सेना के अंदर जवानों की कमी है और उसको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अग्निवीर स्कीम को लेकर भी मुखर रहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, इसने सेना और देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा जा रहा है। भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस योजना के तय बजट जारी नहीं किए जा रहे हैं। इसके अलावा 2023-24 में करीब 3,500 करोड़ रुपए थी और 24-25 में 5400 रुपए करोड़ होगी और ये अब आगे 25-26 में 6,000 करोड़ रुपए पर पहुंचेगा। लेकिन सरकार के पास देने को पैसे नहीं है। भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना का ढांचा पूरी तरीके से विफल हो रहा है और ये कांग्रेस पार्टी गोवा के सांसद कैप्टन ब्रियाटो ने बाकायदा इस मुद्दे को संसद में उठाया गया था और देखते हैं दोस्तों के आगे होता है क्या। तो ये मुद्दा हमारे अपने वेलफेयर से जुड़ा हुआ है जो कि आज लाइमलाइट में आया है। सीएजी रिपोर्ट के बाद खुलासा हुआ है और सरकार अभी जवाब देने से बच रही है। आखिर क्या होगा भविष्य, ये बात की बात है। अब मैं बात करता हूं जोशीमठ में आर्मी कैंप स्टोर में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम। हाँ, जो उत्तराखंड के जोशीमठ में ओली रोड स्थित सेना के एक कैंप में भीषण आग लगने का मामला है, जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे हैं। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया, चारों तरफ अफरा तफरी। आर्मी का एक कैंप का एक स्टोर था, तेज हवाएं चल रही थी। सेना के जवान, फायर ब्रिगेड सारी मशक्कत कर रहे थे आग बुझाने के लिए, लेकिन गनीमत ये रही वहां पर जान माल का नुकसान कम हुआ, यानी किसी को हताहत की खबर नहीं मिली गई है। लेकिन आखिर
उसके बाद कोर्ट फनकारी के आदेश। तो आग कैसे लगी आप देख सकते हो। आग लगने की जानकारी मिलते ही आर्मी कैंप के अंदर मौजूद सुरक्षा घेरे को एक्टिव किया गया। सेना के जवानों के साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। आग को कैंप के मुख्य रिहायशी संबंधित सीन इलाकों हिस्सों तक वहां पहुंचने से रोकने के लिए घेराबंदी की गई ताकि आग ना फैले, और सेना की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं जिससे किसी प्रकार की जान मान हानि से रोका जा सके। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा हमारे देश के असली धुरंधरों की। हाँ जी दोस्तों, देखिए धुरंधर क्रिकेटर भी हो सकते हैं, धुरंधर एक्टर भी हो सकते हैं, धुरंधर फिल्म बन सकती है, लेकिन ये सारे क्षण भर के लिए हैं। नकली धुरंधर, असली धुरंधर ये होते हैं, जरा देखिए। हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमारे जवान किस तरह जहाज से आसमान में छलांग लगा रहे हैं और आसमान को अपनी मुट्ठी में करके रखा है। ये आप देख सकते हो जोश, जुनून और जज्बा इस देश के लिए। तो असली धुरंधर कौन है, वो या ये? और मानवता के आगे आप देखिए, रेलवे स्टेशन के ऊपर आप देख सकते हो एक महिला कुछ खाने पीने की चीजें बेच रही थी। फौजियों ने देखा, इतनी देर से ये बैठी, सारे फौजी मिलके गए और उसको डोनेशन यानी एक पैसे दिए जा रहे हैं और सामान उसका खरीद लिया। भले उन्होंने सामान की रेट नहीं लगाई, लेकिन कितना हृदय विदारक चीज है। मैं सलूट करता हूं इस सोच को, इस हृदय को जो फौजी के अंदर ही पाया जाता। क्योंकि संत भी इस बात पर मोहर लगा चुके। उन्होंने कहा है यस, सबसे बड़ा कोई कल्याणकारी, सबसे बड़ा कोई देश हित में सोचता है, सबसे बड़ी मानवता वाला कोई है तो या तो संत है या सैनिक है। ये हमारे स्वामी प्रेमानंद महाराज जी इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप हो ऐसे, आपका डीएनए ऐसा है। मैं 0.001% की बात नहीं कह रहा, 99.99 की बात कह रहा हूं कि सोल्जर है ना, बहुत जबरदस्त होता है भारतीय सोल्जर, बिल्कुल। और ये आपने करके दिखाया, मैं सैल्यूट करता हूं। अंत में कर्तव्य पथ यानी 26 जनवरी, रिपब्लिक डे परेड, स्वाधीनता दिवस, वहां की तैयारी, यानी आप समझ सकते हो कि सेना का साहबीरता और उसके पौरुष का प्रतीक होता है। वहां पर डेमोस्ट्रेशन होता है, हमारे इक्विपमेंट्स का डेमोस्ट्रेशन होता है, हमारे कल्चर का होता है। तो सेना उसके लिए अपने कंटीजेंट की प्रैक्टिस कर रही है। एक झलक आप देखिए, कुछ नया जरूर होगा। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
एनर्जी लागेल